to make you all aware of the importance of patents in the field of innovation and startup, and to discuss about the various related aspects, how to, what is the procedure for filing the patents, what are other trademarks and other things. So we have been holding such virtual sessions for you all. So, for today's session, we have with us Mr. Kunal Ambast, who is an innovator student of IGNOU. Mr. Kunal, I welcome you to this session for today. I would request you to please uh, uh, open your video also. Uh, Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Thank you so much, sir, Good afternoon. for giving me this opportunity. Good afternoon, everyone. Uh, we are glad to have you with us, Mr. Kunal. Mr. Thank you so Kunal much, is ma'am. an innovator student of IGNOU. He is a student of MCA. He has received Student Innovation Award for the year 2021. He has designed and developed Kia AI, which is a AI powered total offline complete home automation system. He is also the winner of Smart India Hackathon 2022. He is recipient of Community Innovator Fellowship by Niti Aayog at ACIC IIT ISM, Dhanbad. He has also been part of the Together 2023 India Canada program. So he filed for a patent and he received patent after a struggle of 9 years for one of his invention, which was on three-dimensional, six-directional linear motion mechanism. So today we invited him and asked him to share his journey with you all, his experiences, how he filed for the patent, and what all challenges he came across in this process of filing for patent and receiving that patent, what all he went through. And before listening to Mr. Kunal and having this session, I would request Dr. OP Sharma, Director NCID, to please share his views on today's topic. Thank you, Dr. Sujata. Welcome, Mr. Kunal, and all the members who have joined this session. And as Dr. Sujata has informed you, this patent facilitation unit is basically aimed at facilitating all potential innovators in getting patent, copyright, and other trademark registered, etc. And we have been organizing various kind of sessions. Experts have been taking sessions, but we thought, in addition to being an expert, a practitioner, if someone talks to you, the person who has already applied for the patent and also got patent from the patent office, government of India. So we thought it will be good to have a journey entire, what are the all processes, steps in this journey of applying and getting the patent. So we thought there would be no other better person than Kunal, who is well known to all of you, and he has recently got patent also in his name. So Kunal, kindly, very briefly, precisely, you highlight the steps, how you started right in the beginning, and then what was the different stages, what kind of challenges were there, what kind of clarifications you had to give, and what all is possible. Don't go in the detail of the theory. We want you to focus on the process of filing a patent. If I have an idea, if I have something in my mind and I want to apply for a patent, immediately the first thing is what should be the first step for me, and then what next and what next, so that I get the final patent in my name. So all those steps you will have to highlight in that way what you have experienced. Okay, so don't go in that detail which normally an expert explains in a talk which we have been listening. That's why we have invited you, who is an experienced practitioner, a person who has got patent. So, and I can see some other others also who have been in this process of patent.
So it will be good to listen to you. So be focused, step by step, and then after that we can invite students for their queries also. So thank you very much, Kunal, for accepting our invitation and share your experience. So over to you, Dr. Sujata now. Thank you, Dr. Sharma. And I would now request Kunal to please take over and start your talk, and we can have an interaction later on. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Good afternoon, everyone. It's a matter of great pleasure for me, and it's really a great day for me that I got an invitation from NCID, of which I have been a part, and under the guidance of NCID, I have been able to achieve this much whatever I'm having today. और जो एक छोटी सी चीज मैं हमेशा याद रखता हूँ कि जब पूरी दुनिया ने ठुकराया था तो आपने अपनाया था. So that is why wherever I am today, it's all due to the NCID and IGNOU. Otherwise, मैं कब तक खत्म हो चुका था. Thank you so much, ma'am. And so uh, I would like to start with a with a golden line. जो मुझे एक मतलब जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ. He was a scientist and उन्होंने कहा था कि if you don't know how to commercialize your idea, don't invent. तो मैं थोड़ा सा ये सुनकर काफी डिस्करेज हो गया था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि he was absolutely right. If you don't know how to commercialize your idea, you will really find it very difficult to move forward. So we are going to start how to start with the patent. तो मेरी जो पेटेंट की जर्नी है, वो पेटेंट की जर्नी स्टार्ट हुई थी 2010 में. 2010 में मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिससे आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे स्टेप बाय स्टेप मैनर में. मतलब ऐसे जैसे कि आपके टीचर आपको एक्सप्लेन करते हैं. मैंने सोचा कि ये कमाल का सॉफ्टवेयर है और इतने सारे स्टूडेंट्स के बड़े काम आएगा. और मैंने एक्चुअली एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट जो कि एकदम अभी जस्ट ग्रेजुएशन में आया ही है, तो उसे क्या दुनिया की खास जानकारी होगी. मैंने सीधा पेटेंट ऑफिस का नंबर निकाला इंटरनेट से, पेटेंट ऑफिस में कॉल कर दिया और उन्हें कॉल करके कहा कि मुझे पेटेंट चाहिए. मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है. जिनसे मेरी बात हुई, ही वाज रियली वेरी जेंटल एंड काइंड पर्सन. उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, आप जो चीज के लिए आपने यहाँ कॉल किया है, सॉरी वी कैन नॉट ग्रांट पेटेंट फॉर दिस, बट आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं उसे कॉपीराइट कहा जाता है. आपको कॉपीराइट के लिए जाना चाहिए. तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये सिर्फ पेटेंट नाम की एक चीज नहीं है, बल्कि इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आईपी के अंडर में आती हैं. तब तक मैं आईपी वर्ड को भी नहीं जानता था. बाद में फिर मुझे समझ में आया एक टर्म है जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं. वो प्रॉपर्टी जो आपके इंटेलेक्ट से बनती है, आपकी बुद्धि से आपने जिन चीजों को तैयार किया है, बनाया है, वो सारी चीजें आईपी में कवर होती हैं, लेकिन उन सब का डोमेन अलग अलग है. जैसे कॉपीराइट जो है वो आर्टिस्टिक वर्क के लिए है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए है. लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा एक फैक्ट है कि कुछ चीजें जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर में, एल्गोरिदम के अंदर में भी, वो दोज आर सब्जेक्ट टू पेटेंट. तो ये डिफरेंट चीज है वहां पर. तो फिर जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैंने कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया, आई गॉट द कॉपीराइट. और उसके बाद में इन 2014 आई अप्लाइड फॉर द पेटेंट. एक्चुअली मैंने एक डिवाइस तैयार की थी, और वो डिवाइस जो मेरा मैकेनिज्म था, वो मैकेनिज्म डिजाइन करने के बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि आई शुड गो फॉर इट. लेकिन एक्चुअली मैं पेटेंट करवाना नहीं चाहता था. फैक्ट यही है कि मैं पेटेंट नहीं चाहता था. एक्चुअली मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, उनका सेशन अटेंड करने की. तो जब उनका सेशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने पेटेंट को बहुत डेप्थ में, मतलब आईपी को बहुत डेप्थ में उन्होंने एक्सप्लेन किया था. उसके बाद में मैं उनसे पर्सनली जाकर के मिला और मैंने कहा कि सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और सर क्या मुझे आपका विजिटिंग कार्ड मिल सकता है. और उसके बाद में वहां से जाकर के जो है वो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है. अब इसके बाद मैं जितनी भी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा, हर एक चीजें बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंक्लूड माई टॉक विद इन 15 to 20 मिनट्स सेशन. सो जब मैं उनके पास में वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया. मैं अपने फादर के साथ गया और पर्सनली मैं उनसे जाकर के मिला. मैंने पूरा जो भी मेरा इन्वेंशन था, जो मैंने टोटली हर एक
पॉइंट को, हर एक एक चीज को एकदम इन डिटेल्स डॉक्यूमेंटेड कर रखा था। वो पूरा पेपर लेकर के मैं सर के पास पहुंचा। मैंने कहा कि सर, दिस इज व्हाट आई हैव डेवलप्ड, मेरे पास में इसका प्रोटोटाइप अवेलेबल है, वो वर्किंग प्रोटोटाइप है, और मैं सर चाहता हूँ कि इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए। तो उन्होंने पूछा पब्लिक डोमेन में क्यों? तो मैंने कहा सर, मैं इसलिए इसे पब्लिक डोमेन में देना चाहता हूँ ताकि हर एक आदमी को, जो भी कोई इससे इस टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना चाहता है, उसके पास में एक्सेस हो, फ्रीडम हो, और उसे किसी के पास जाना ना पड़े, और सारा वो उसको फ्रीली यूज कर सके। तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू वांट टू गो फॉर पेटेंट, तो पेटेंट क्यों नहीं करवाना है? तो मेरा तो कॉन्सेप्ट यही था कि मैं इसको फ्रीली अवेलेबल करवाना चाहता था दुनिया के लिए। लेकिन जब उन्होंने मुझे पेटेंट के बारे में एक्सप्लेन किया और उससे रिलेटेड चीजों को एक्सप्लेन किया, मुझे समझ में आया कि नहीं, पेटेंट वो चीज है जिसके बारे में मैं जिसको मैं ढूंढ रहा था। एटलीस्ट आई विल हैव सम मींस क्रेडिट ऑन माय नेम, और बाद में क्या होगा कि अगर कोई मेरे पास आएगा, मेरी परमिशन के बगैर उसे कोई यूज नहीं कर सकता। वैसे ये इसमें भी कुछ चीजें हैं जो मैंने बाद में एक्सप्लोर की कि ऐसा नहीं है, मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप पेटेंट को, अब चूंकि था क्या कि मेरे पास में गाइड करने वाले वो एकमात्र थे, और उन्होंने मुझे गाइड किया जो वो कर पाए। और उसके बाद में मुझे पेटेंट फाइल करना था। अब मतलब अब उनसे बात करने के बाद ये डिसाइड हो चुका था कि मुझे पेटेंट फाइल करना है। तो पेटेंट फाइल करने के लिए सबसे पहली जो चीज थी वो प्रायर आर्ट थी। मुझे मतलब मुझे जो प्रायर आर्ट था उसको सर्च करना था कि जो चीज मैं पेटेंट करवाने जा रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा पहले बन चुका है, या ऐसे पहले एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या कुछ ऐसी मिलती जुलती चीज तो नहीं है मार्केट में। एंड इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मतलब वो बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, बट सम हाउ आई मैनेज्ड। और उसके बाद में क्या हुआ कि फिर मैंने उसको डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया, हर एक एक चीज को। मतलब मैंने उन्होंने मुझे कहा था कि तुम इस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट तैयार करो कि मान लो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ इस टेक्नोलॉजी के बारे में, बस मुझे उस डिवाइस को बनाना है, एग्जैक्टली वैसा बनाना है जैसा तुमने बना रखा है। तो तुम कैसे उसको डॉक्यूमेंटेड करोगे कि मैं उसको पढ़ करके वो सेम चीज, सेम डिवाइस डेवलप कर सकूं, और उस डिवाइस का वो सेम एप्लीकेशन होना चाहिए जो तुम्हारे पास है, जो तुम उससे जो टास्क प्रोड्यूस करवा पा रहे हो या जनरेट करवा पा रहे हो, जो भी आउटपुट आ रहा है वो सेम आउटपुट मेरे पास भी आना चाहिए। तो तुम उस तरीके से डॉक्यूमेंट करो। अब मुझे हर एक चीज को उस तरीके से डॉक्यूमेंट करना था, हर एक चीज को उस तरीके से अरेंज करना था। मैंने अपनी तरफ से द बेस्ट कोशिश की। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि राइटिंग द पेटेंट ड्राफ्ट is not a is not an it's not an easy task. It's an it's a particular kind of skill, और जो लोग ये कर रहे हैं वो बहुत ही प्रैक्टिस्ड हैं इसमें, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक इसको प्रैक्टिस किया है, बहुत लंबे समय तक इस पर वर्क किया है, एंड दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पर एक टर्म आता है, पेटेंट अटॉर्नी या पेटेंट एजेंट। तो कुछ लोग जो हैं वो पेटेंट एजेंट की हेल्प लेना पसंद करते हैं, और मैंने तो मुझे तो चूंकि इस तरह का कुछ आइडिया था ही नहीं कि पेटेंट एजेंट नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे लगा जो भी करना है वो इन्वेंटर को खुद करना होता है। तो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। और एक चीज थी मेरे दिमाग में कि हाँ, आई कैन कॉल द गवर्नमेंट ऑफिस, मैं उन्हें कॉल कर सकता हूँ पेटेंट ऑफिस को, और उनसे पूछ सकता हूँ कि सर मुझे अब क्या करना है, अब क्या करना है, कौन सा फॉर्म चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5, फॉर्म 26, ये जो है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट कीजिए, उसको भर करके हमें भेजिए। जो पेटेंट की फी और फॉर्म अभी भी वही भरने होते हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5, फॉर्म 26, यही आपको फॉर्म फिलअप करने होते हैं। तो इन फॉर्म्स में उसमें फी जो थी वो अभी अभी भी वो फी है, 1750 रुपीज फी है अगर आप ऑफलाइन मोड में जाते हैं। तो ऑनलाइन मोड में आप जाएंगे तो आपको कम पड़ेगा, वो 1600 ही पड़ेगा आपको। और उस 1600 में की जो फी है उसके साथ में आप 30 पेज का स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, और 10 क्लेम्स दे सकते हैं, और 30 पेज का स्पेसिफिकेशन हो जाता है, और आपको क्लेम होते हैं, 10 क्लेम्स रहते हैं उसमें। और एक A4 साइज पेपर पर, सारा तो A4 साइज पर ही बनेगा, 1 पेज का आप एब्स्ट्रैक्ट आपको सबमिट करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो तो आप समझ रहे हैं, आपके इन्वेंशन का कंप्लीट समरी है वो।
तो सबसे पहले जो चीज़ थी मेरे लिए वो ये थी कि मेरे को हर एक चीज़ को वो पूरा कंप्लीट ड्राफ्ट तैयार करना था। और आप जान कर के बेहद हैरान होंगे कि मतलब मैंने उसमें बाद में अभी भी जब मैं वो पेपर को दोबारा से खोलता हूँ और पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कि ये एक बच्चे की बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। एक छोटा-सा बच्चा एक कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था, जो जस्ट ग्रेजुएट हुआ था और बस उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं था और इनफैक्ट। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो भी मैंने अपनी इंजीनियरिंग कोर्स में सीखा था, मैंने हर एक टर्म को उसमें प्रॉपर्ली यूज़ करने की कोशिश की, जिस वजह से मेरे पेटेंट में थोड़ी-सी जो है वो थोड़ा स्कोप बचा हुआ था। तो पेटेंट जो होता है, जो चीज़ें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी वो ये कि पेटेंट जो है वो इन्वेंशन के लिए आपको ग्रांट किया जाता है। अब इन्वेंशन क्या है? कोई भी नोवेल डिवाइस, मेथड, प्रोसेस या कंपोजिशन ये जो है ये दीज़ आर सब्जेक्ट टू पेटेंट, लेकिन इसमें भी कई चीज़ें हैं जो कि जिनका आप पेटेंट नहीं ले सकते। तो पेटेंट अगर आप फाइल करना चाहते हैं, अगर आपने कुछ ऐसा बनाया है, कोई ऐसी रॉक सॉलिड टेक्नोलॉजी या फिर कुछ भी ऐसा नया आपने तैयार किया है, तो और आप उसका पेटेंट फाइल करना चाहते हैं, तो पेटेंट फाइल करने के लिए 3 बेसिक क्राइटेरिया जो हैं, आपको अपने दिमाग में रखना होगा। पहली चीज़ जो है, वो है नोवेल्टी। इट मस्ट बी नोवेल, इट मस्ट बी न्यू और न्यू इन द सेंस कि ये टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हो और मतलब एकदम से नई चीज हो जिसको जो पहले एग्जिस्टेंस में ना रही हो। सेकंड, नॉन ऑब्वियस। जाहिर सी बात है, अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि सॉल्टी वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने ये कह दिया कि भाई मेरे पास में एक स्पेशल तरह का नमक है, उस नमक को मैं इस लिक्विड में डालूंगा और 2 वायर कनेक्ट करूंगा और इलेक्ट्रिक करंट उसमें से कंडक्ट होने लग जाएगा, सो आई नीड अ पेटेंट फॉर इट। तो पेटेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर इट। नॉन ऑब्वियस चीजों के लिए मतलब ये इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस, मतलब ये इतना ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई ये तो होता ही है, एवरीवन नोज। या मान लीजिए एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम डेवलप किया है जो जो कि कई नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम कैलकुलेट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, अब कोई जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको तो लगता होगा कि भाई ये बड़ी कमाल की चीज है, बहुत बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होने लगेगा कि यार इसमें इन्होंने नया किया क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। सो जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए वो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। तो नॉन ऑब्वियस चीजें जो होती हैं सिर्फ आप उनके लिए ही पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड जो है वो ये है कि इसका कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। इट मस्ट हैव सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और वो इंडस्ट्री में किसी तरीके से यूजेबल हो। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके दिमाग में है, तो वो 3 चीज़ें अगर वो सॉल्यूशन जो या जो आपने डिवाइस बनाई है वो उसको अगर 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो आप पेटेंट के लिए जा सकते हैं। इसके साथ में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, 9-10 एक्सेप्शंस हैं जिसपे जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई प्लांट का नया ब्रीड तैयार किया है या एनिमल का कोई नया ब्रीड तैयार किया है या कोई नया माइक्रोब बना लिया है, तो आप उसके लिए पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। कोई एग्रीकल्चर प्रोसेस है, कोई खास पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोसेस आपने बना लिया है, आप उसके लिए पेटेंट नहीं फाइल कर सकते। कोई आपने सर्जिकल प्रोसेस तैयार कर लिया है, नया मेडिसिनल प्रोसेस तैयार कर लिया है, आप उसके लिए पेटेंट नहीं फाइल कर सकते। सिर्फ आपने किसी चीज की डिस्कवरी कर ली है, कोई साइंटिफिक फैक्ट की या साइंटिफिक थ्योरी की डिस्कवरी कर ली है, आप उसके लिए पेटेंट नहीं फाइल कर सकते जब तक वो थ्योरी किसी डिवाइस के फॉर्म में या फिर किसी मेथड या प्रोसेस के फॉर्म में ना आ जाए। मान लीजिए कि और खास और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिससे ह्यूमन सोसाइटी को या फिर ह्यूमन रेस को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि कह सकते हैं समथिंग काइंड ऑफ एटम बॉम्ब, तो आप उन चीजों के लिए पेटेंट नहीं फाइल कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जिनको आपको दिमाग में रखना होगा पेटेंट को फाइल करते समय कि मतलब आप जो 9-10 एक्सेप्शंस हैं वो उन एक्सेप्शंस में भी नहीं आने चाहिए और जो उसकी बेसिक क्राइटेरिया है उन बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। तो भाग्यवश ये सारी चीजें ये सारी चीजें मेरे साथ में ओके थी, मतलब मेरे पेटेंट के साथ मेरी इन्वेंशन के साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने उसका ड्राफ्ट तैयार किया और उसको फाइल कर दिया एप्लीकेशन फी दे करके, ऑफलाइन मोड में। उसमें शायद ऑनलाइन मोड की फैसिलिटी भी नहीं थी। अब ऑनलाइन मोड की फैसिलिटी है और अब आपको इतनी परेशानी भी आपको नहीं झेलनी होगी। आप ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑफलाइन अप्लाई किया। तो जब मैंने ऑफलाइन अप्लाई किया वहां से एक ईमेल आया कि हाँ भैया हमने आपका एप्लीकेशन मिल चुका है हमें। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। आफ्टर 18 मंथ्स वो जो जर्नल है वहां का पेटेंट ऑफिस का
उस पेटेंट ऑफिस के जर्नल में ये पब्लिश होता है। तो पेटेंट ऑफिस के जर्नल में मेरा जो इन्वेंशन था वो पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद में वो एक आपको एक रजिस्टर मतलब काइंड ऑफ जिसे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर कह लीजिए आप, उस तरह का एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होकर के आ जाता है। तो अब जो आपके पास है, मान लीजिए वो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आ गया, एप्लीकेशन नंबर तो जिस दिन आपने फाइल किया उसी दिन एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाता है, जैसे वो मतलब फाइल हो जाती है आपकी एप्लीकेशन। तो और जब वो आपको ईमेल आएगा तो आपको एप्लीकेशन नंबर के साथ आ जाएगा, तो आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो चुका है। 18 मंथ्स के बाद आपका एप्लीकेशन पब्लिश हो जाता है। तो मेरा एप्लीकेशन पब्लिश हो गया 18 मंथ के बाद। तो जब 18 मंथ्स के बाद मेरा एप्लीकेशन पब्लिश हो गया तो अब बारी आई थी एग्जामिनेशन की, कि अब पेटेंट का एग्जामिनेशन करवाया जाए। मतलब इससे पहले जो था वो मतलब इसको कह सकते हैं आप कि मतलब एज अ सीक्रेट वहां पर उसको रखा गया था 18 मंथ्स तक, और 18 मंथ्स के बाद उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है। मतलब आपने जो भी इन्वेंशन किया है उस इन्वेंशन को 18 मंथ्स के बाद पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है कि हाँ भाई अब ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। एक चीज यहाँ पर जो मैंने सीखी वो ये कि उस ड्यूरेशन में जब तक आपने पेटेंट मतलब जैसे आपने आज पेटेंट फाइल कर लिया, तो आज अगर आपने पेटेंट फाइल कर लिया और आपने मान लीजिए वो टेक्नोलॉजी किसी के साथ में शेयर कर रखी है, तो वो आदमी तब तक उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है जब तक वो पेटेंट ग्रांट ना मिल जाए। विदाउट योर परमिशन वो कर सकता है, क्योंकि आपको पेटेंट ग्रांट नहीं हुआ है। तो क्योंकि आपको पेटेंट ग्रांट नहीं हुआ है तो इसलिए आपके इन्वेंशन को लोग यूज कर सकते हैं। और और दूसरी जो चीज मैंने सीखी वो ये कि पेटेंट जो है वो मतलब वो रीजन स्पेसिफिक है। मतलब मान लीजिए अगर मैंने इंडिया में पेटेंट फाइल किया है तो वो पेटेंट इंडिया में ही वैलिड होगा, वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में वैलिड नहीं होगा। तो उसके बाद फिर जब 18 मंथ्स क्रॉस हो गए और मेरा पेटेंट पब्लिश्ड हो गया, तो पेटेंट पब्लिश होने के बाद में फिर मैंने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया। तो एग्जामिनेशन की जो फी थी 4000 रुपीज, वो 4000 रुपीज मैंने पे की थी, और पे करने के बाद वो एग्जामिनेशन के लिए वो अप्लाई हो गया। एग्जामिनेशन में के लिए जब अप्लाई हुआ तो उसके बाद मैंने पेटेंट ऑफिस से कांटेक्ट किया कि अब कितना समय लगेगा। तो ये उसमें पर्टिकुलर पर्टिकुलर पीरियड का जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको अराउंड 2016-17 के करीब था। तो उस समय पेटेंट ऑफिस में लोड बहुत ज्यादा था, और जो पेटेंट एग्जामिनर्स थे वो पेटेंट एग्जामिनर्स उतने नहीं थे एडिक्वेट नंबर में कि पेटेंट ऑफिस अपने लोड को कम करवा पाए या उसको तेजी से उसका निपटारा कर पाए। तो इसलिए मेरे केस में इसमें काफी लंबा समय लग गया। अराउंड इट टुक 9 ईयर्स, कंप्लीट 9 ईयर्स, पूरा पूरा 9 साल लग चुका है। और ये 9 साल में एक बड़ी कमाल की चीज मुझे याद आ गई जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। ये जो 9 साल का समय लगा ना, तो इसमें क्या है कि जो मुझे पेटेंट मिला है वो पेटेंट अब 11 ईयर्स के लिए वैलिड है, क्योंकि पेटेंट की जो लाइफ साइकिल होती है वो 20 ईयर्स की होती है। आपको कोई भी पेटेंट जो है वो 20 ईयर्स के लिए ग्रांट होता है। तो 20 ईयर्स में मेरा 9 ईयर बीत चुका है। अब ये चीज मेरे दिमाग में ये चीज थी कि पेटेंट जो है जिस दिन मुझे पेटेंट ग्रांट होगा उस दिन से 20 ईयर्स वैलिड रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेटेंट आपने जिस दिन पेटेंट फाइल किया, एप्लीकेशन जिस दिन आपने फाइल की है उस दिन से काउंटिंग स्टार्ट होगी, और उस दिन से 20 ईयर्स जोड़े जाएंगे। अब मान लीजिए कि मुझे 9 साल लग गए, तो 9 साल में वो 9 साल मेरे हिस्से से कटे हैं। अब मेरे पास में 11 ईयर्स ही हैं, जिस 11 ईयर्स में मैं उसका कुछ भी जो भी मैं चाहूँ वो मैं उसका यूज कर सकता हूँ। किसी को लाइसेंस करना चाहूँ तो लाइसेंस कर सकता हूँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहूँ तो ट्रांसफर कर सकता हूँ, या कोई भी दूसरा जो उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसके लिए मैं जा सकता हूँ आगे। तो ये चीजें हैं जो एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर चीज क्या आई कि जब मैंने मतलब पेटेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो एग्जामिनेशन में के लिए अप्लाई करने के बाद में उन्होंने मुझे कुछ जिसको हम लोग फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहते हैं, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कुछ उस पर कह सकते हैं कुछ क्वेरीज रेज की थी। तो जो उन्होंने कुछ क्वेरीज रेज की थी, कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए थे उन्होंने, तो मुझे उन ऑब्जेक्शंस का जवाब देना था। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में दो रास्ते होते हैं। या तो उस ऑब्जेक्शन का, जैसे कि मैंने कि पूरा पेटेंट एप्लीकेशन खुद बनाया था, हर चीज खुद तैयार की थी और उसको खुद ही फाइल किया था, तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा रास्ता था कि मैं खुद ही उसको कंटिन्यू करता रहूं। लेकिन मैंने सोचा कि ये यहाँ पर काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। देन आई हैड टू टेक हेल्प ऑफ पेटेंट एजेंट्स जो मतलब स्पेशलाइज्ड हैं इस काम में। तो
उन्होंने फिर मैंने उनके साथ अपने पेटेंट का, अपने इन्वेंशन को कंप्लीट डिस्कस किया उनके साथ में। डिस्कशन के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि सर जो क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहे हैं, जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं, उन ऑब्जेक्शंस को ऐसे करके डील करना होगा। आपने कुछ टेक्निकल टर्म्स वहां पर मिस कर दिए थे, कुछ डिटेल्स आपने कम डाली थी, इस वजह से ये जो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, ये ऑब्जेक्शन इस वजह से आए हैं। तो फिर वापस से एक तैयार किया गया, उसका पूरा आंसर तैयार किया गया, उसके रिस्पॉन्सेज तैयार किए गए, और रिस्पॉन्सेज तैयार करने के बाद हमने फिर से उसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद में सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में मुझे लगता है लगभग 2.5 साल और बीत गए, फिर 2.5 साल और बीत गए। उसके बाद 2.5 साल के बाद में एक कम्युनिकेशन आता है मेरे पास में कि हियरिंग है, आपको हियरिंग अटेंड करनी है। तो फिर मैंने हियरिंग अटेंड की। तो जब मैंने हियरिंग अटेंड की तो मैंने मुझसे जो भी कुछ सवाल पूछे गए कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम्स थी, आपने इसको एक्सप्लेन सही से नहीं किया है, आपने जो ड्राइंग सबमिट की है वो ड्राइंग में कुछ इश्यूज हैं, और मतलब जैसे देखिए, एक जो ड्राइंग मैंने तैयार की थी, वो ड्राइंग बस उस तरीके से तैयार कर ली थी जैसे कि मतलब एक नॉर्मल वे में की जा सकती है। मतलब वो उतना ज्यादा हाईली टेक्निकल नहीं था, क्योंकि उसमें मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी, या मैं जानता नहीं था इन चीजों को कि ये कितना टेक्निकल टास्क है ये, और इसमें कितने डिटेल्स की जरूरत होती है। फिर मैंने दोबारा से फ्रेश सबमिट किया। इवन कि मैंने मतलब जब हियरिंग हो रही थी तो मैंने हियरिंग में मैं अपने इन्वेंशन को लेके बैठा हुआ था कि आज मैं पहले इसको यहाँ पर फंक्शन करके दिखाई दूंगा। तो मैंने उनसे परमिशन मांगी कि सर मैं इसको आपको चला के दिखाना चाहता हूँ। मैंने उनको चला के देखा, उन्होंने कहा कि मिस्टर कुणाल, वी आर रियली वेरी सेटिस्फाइड विद इट, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आपने जो डिटेल्स सबमिट की है उसमें प्रॉब्लम है। फिर दोबारा से उस ड्राइंग को तैयार किया गया, फिर से उसको सबमिट किया गया, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट द पेटेंट ग्रांट। इस ये जो जर्नी थी 9 इयर्स की, इस जर्नी में मैंने कई एक चीजें जो सीखी वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पेटेंट जो प्रोसीजर है, पेटेंट का जो कंप्लीट प्रोसीजर है, वो जो लाइफ साइकिल है आपके इन्वेंशन पेटेंट का, उस पेटेंट के इन्वेंशन का मतलब पेटेंट की जो लाइफ साइकिल है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वो पार्ट है पेटेंट ड्राफ्टिंग। आपका जो एप्लीकेशन आप ड्राफ्ट कर रहे हो, आप जो स्पेसिफिकेशंस लिख रहे हो, आप जो टेक्निकल उसको वो डेफिनेटली इट्स अ टेक्निकल राइटिंग, तो उस पर जो आप वर्क कर रहे हो अपने एप्लीकेशन पे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंटायर लाइफ साइकिल। पेटेंट के इंटायर लाइफ साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके लिए। तो एंड दिस इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट विद द पेटेंट ऑफिस। एक और चीज मैंने देखी कि पेटेंट ऑफिस कभी आपको ये नहीं मतलब इन सम केसेस कंट्रोलर जो है वो पूछ सकते हैं कि भाई हमें कुछ प्रॉब्लम है, आप इसका प्रोटोटाइप दिखाइए हमें। नॉर्मली आपसे प्रोटोटाइप नहीं मांगा जाता, नॉर्मली वो आपसे प्रोटोटाइप नहीं मांगते कि आप हमें प्रोटोटाइप दिखाइए। आपने जो इन्वेंशन किया है उसको इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से इतने डिटेल्स के साथ में आपको लिखना है कि मतलब उसको उसको सिर्फ पढ़ करके उस सेम आउटपुट को कोई भी जनरेट कर सकता हो। पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि जब आप उसमें क्लेम्स लिखें, तो क्लेम्स को आपको इस तरीके से डिजाइन करना है, क्लेम्स को इस तरीके से तैयार करना है कि आपका जो इन्वेंशन है, जिसे आपने जो इन्वेंशन, मान लीजिए आपने जो इन्वेंशन कर रखा है, या मान लीजिए कि मैंने विनेगर बनाने का एक नया मेथड ढूंढ निकाला है, और विनेगर जो है वो मैं एप्पल्स का बनाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए एप्पल विनेगर मैं तैयार कर रहा हूँ, मेरे पास एक नया मेथड है, कंप्लीटली एक नया मेथड आ गया है मेरे पास में, और मैंने एप्पल विनेगर का वो जो मेथड है उसको पेटेंट करने के लिए मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम रह गई, क्या जिस मेथड से मैंने एप्पल विनेगर बनाया है, क्या उस मेथड से दूसरे विनेगर्स बनाए जा सकते हैं? और अगर मैंने सिर्फ एप्पल विनेगर के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, तो मुझे जो पेटेंट ग्रांट होगा, जो मेरी राइट्स होंगी इन टर्म्स ऑफ पेटेंट, तो वो सिर्फ उस एप्पल विनेगर के लिए ही लिमिटेड रहेगा। वो जो दूसरी चीजें और उससे मिलती जुलती हुई हैं, वो कवर नहीं हो पाएंगी उसमें। और अगर आप उनको कवर करना चाहते हैं, तो ये सारा खेल उस राइटिंग स्किल का है। तो इसीलिए इस जर्नी में मैंने एक चीज सीखी कि पेटेंट ड्राफ्ट करना जो है, इट्स नॉट समथिंग दैट एनीवन कैन डू। इट रिक्वायर सर्टेन स्पेशलाइजेशन, इट रिक्वायर एक्सपीरियंस,
और इसके लिए शायद मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि शायद इसीलिए लोग पेटेंट एजेंट्स की हेल्प लेते हैं या अटॉर्नी जनरल पेटेंट अटॉर्नीज की हेल्प लेते हैं। ये पहला स्टेप था। और उसके बाद में फिर आपको अगर आपने प्रॉपरली उसको ड्राफ्ट किया है तो फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद पूरी चांसेस होते हैं कि अगर उसमें कोई भी उन्होंने क्वेरी रेज नहीं की है या कोई मतलब किसी दूसरे तरह की प्रॉब्लम वहां पर नहीं आ रही है तो आपको शायद पेटेंट ग्रांट हो भी जाएगा उसी समय। और अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद में जो है वो आप हियरिंग अटेंड कीजिए, हियरिंग के बाद उनको रिस्पॉन्ड कीजिए और दिस इन दिस वे यू कैन सर्टेनली प्रोसीड। और लाइफ साइकिल जो है वो तो 20 इयर्स का है, तो आफ्टर 20 इयर्स आपका पेटेंट जो है वो कम्प्लीटली पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो जब मैं पेटेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ था तो मतलब इन सब चीज़ों के साथ में वर्क कर रहा था, तो उसी समय मुझे विपो के बारे में पता चला। तो विपो जो WIPO विपो इज वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो मैंने फिर विपो को एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि वो कुछ एकेडमिक कोर्सेज भी चलाते हैं। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर दैट। तो मैंने वहां से 2 कोर्सेज किए। एक पीसीटी में किया, इंट्रोडक्शन टू पीसीटी पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, और दूसरा किया जनरल कोर्स ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। और एंड आई गॉट सर्टिफाइड एंड आई गॉट सो मच टू लर्न। मतलब पता चला कि पीसीटी क्या है और किस तरीके से हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इसमें एक और चीज जो यहाँ पर मैंने सीखी वो ये सीखा कि जिसे एक एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक ड्रोन बनाया है और नॉर्मली हम जो देखते हैं वो ड्रोन्स में आई एम सॉरी, वो ड्रोन में 4 रोटर्स होते हैं और वो 4 रोटर्स जो हैं वो ड्रोन को सफिशियंट थ्रस्ट देते हैं जिसके बाद वो टेक ऑफ कर पाता है। मान लीजिए कि मैंने जो है वो एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें 6 या 7 या 5 रोटर्स लगे हुए हैं और वो ड्रोन जो है वो ड्रोन पानी में भी जा सकता है और वाटर के सरफेसेस पर भी वो आराम से वो जो है वो मतलब फ्लोट कर सकता है। तो ये मान लीजिए अगर मैंने इसको तैयार किया है तो जाहिर सी बात है ये एक पर्टिकुलर डिजाइन होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ जगहों पर कुछ देशों में इसे डिजाइन पेटेंट के नाम से जाना जाता है और हमारे यहाँ इसे डिजाइन रजिस्ट्रेशन कहते हैं। आप डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजाइन में और एक इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? डिजाइन जो है वो सिर्फ एक आउटलुक को डिफाइन करता है। मतलब मान लीजिए कि मैंने एक मेरे पास मैं एक नई बाइक बना रहा हूँ और एक नई बाइक के लिए एकदम मैंने एक ब्रांड न्यू डिजाइन तैयार किया उसके हेडलाइट्स के लिए, जिसका कोई जो मान लीजिए कि रात के समय ड्राइवर को ज्यादा हेल्प पहुंचा सकती हो। उसका जो डिजाइन है वो डिजाइन इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो ड्राइवर को असिस्ट कर सकती हो रात के समय बेहतर तरीके से। तो ये जो है ये इन दैट केस ये सिर्फ डिजाइन मतलब डिजाइन रजिस्ट्रेशन में फॉल नहीं करेगा। डिजाइन रजिस्ट्रेशन तब होता है या सिर्फ वो तब किया जा सकता है जब आप सिर्फ उसके आउटलुक को मतलब उसके आउटलुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ताकि उसे कोई दूसरा कॉपी करके तैयार ना कर सके। लेकिन अगर उसी कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसमें कुछ यूजेबिलिटी है, वो अगर कुछ नया चीज ऑफर कर पा रहा है, कुछ नई टेक्नोलॉजी ऑफर कर पा रहा है, तो फिर वो इन्वेंशन के लिए भी एलिजिबल है। आप उसको आप उसको पेटेंट भी फाइल कर सकते हैं उसके लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट और इसी जर्नी में आई फाइल्ड अराउंड 10 कॉपीराइट्स। सो आई रिसीव्ड 10 कॉपीराइट्स एंड आई फाइल्ड 2 पेटेंट्स। एक पेटेंट मुझे मिल चुका है, दूसरा पाइपलाइन में है। सो आई एम रियली वेरी श्योर कि very soon I will have another one. And by the blessings of my teachers, I'm moving forward in their guideline. Thank you so much. Ma'am, I think I think Sujata ma'am is not here. She was actually having some network issue. Ma'am,
Kunal, Dr. Hello, Sujata will just be joining. There she is. yeah, Kunal. Yes, ma'am. Yeah. So it was really nice to know about the entire journey, or what all you went through while filing for the patent, the process, and what are the things that we need to be careful about. So, any questions from the participants? हेलो कुणाल जी, आई एम कुबेर। एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ तो थोड़ा उतना ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो पेटेंट के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो क्या जैसे एक म्यूज़िक वाला जो फील्ड है उसमें अगर हम कोई नई चीज़ लिखते हैं या नया गाना या उसका नई धुन तैयार करते हैं, तो क्या वो भी इसी में आता है या फिर वो कॉपीराइट में होता है या उसके लिए कोई और टर्म होती है? क्या प्रोसीजर सेम होता है या कुछ मतलब उसके बारे में थोड़ा जानना है, या फिर थैंक वो यू सो थैंक यू सो कैसे? मच। सर, अगर आप ब्रॉडली इसको कहा जाए तो ये एक म्यूजिक कंपोजिशन ऑफ म्यूजिक और लिरिक्स और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, वो सर आर्टिस्टिक वर्क में आता है। और आर्टिस्टिक वर्क के लिए सर कॉपीराइट ग्रांट की जाती है सर। तो आप अपने वर्क को अंडर कॉपीराइट आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस म्यूजिक को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपने कोई खास तरह का इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लिया है या कोई खास तरह का मेथड डेवलप कर लिया है सर, तब डेफिनेटली यू कैन कंसीडर गोइंग फॉर द पेटेंट। लेकिन ओके, for that musical note, sir, you should go for I think you should go for copyright, sir. कॉपीराइट, ओके। थैंक यू, थैंक यू। Oh, I have a question, Kunal ji. Myself Yes, Jagannath. sir. Yeah. Hello, sir. हाँ हाँ हाँ। मेरा ये एक सवाल था आपसे कि कोई भी अगर डिजाइन हो, जैसे I am running a vertical garden installation thing along with my property वाला thing। तो उसमें हम लोग एक वर्टिकल गार्डन बनाते हैं जो चीज़ 100% पोर्टेबल वर्टिकल गार्डन, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है, आप कहीं भी लेके उसको इंस्टॉल करके फिर आप यू कैन यूज दैट वर्टिकल गार्डन। ठीक है, इसे पोर्टेबल वर्टिकल गार्डन उसको बोलते हैं। तो इसका जो डिजाइन है, तो इसका डिजाइन क्या कॉपीराइट में आएगा या फिर कैसे आएगा? सर जो उसका डिजाइन है सर, आप उसके लिए डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जाइए सर। वो ज्यादा मेरे हिसाब से सर वो ज्यादा बेहतर रहेगा, और वो तेजी से आपको मिल भी जाएगा सर। डिजाइन रजिस्ट्रेशन जो होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन जिसको कहते हैं सर हम लोग, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन आपके लिए मतलब सर बेटर सॉल्यूशन होगा, अप टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज सर। वैसे कॉपीराइट के लिए तो सर सिंपली ये है कि आपने आपने जो मतलब कॉपीराइट में अगर आप हम उसको टर्न होना चाहें सर, तो उसके लिए क्या है सर कि उसको मुझे आर्टिस्टिक वर्क में कन्वर्ट करना होगा। लाइक लेट्स से सर आई टूक अ फोटोग्राफ, कि जो मैंने डिजाइन अपनी बनाई है सर, उसका अपना एक फोटोग्राफ ले लिया। उस फोटोग्राफ को सर मैंने आईपी ऑफिस में भेज दिया कि मुझे इसका कॉपीराइट चाहिए, तो उसी कॉपीराइट दे दी जाएगी सर। तो उससे क्या होगा कि वो कोई दूसरा उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। बट सर आपका चूंकि उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है सर बहुत ज्यादा, आप जो चीज बता रहे हैं सर वो एक मतलब बहुत ही शानदार सी एक चीज है सर, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो सर बेहतर होगा कि आप उसके लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएं सर, तो आपको ज्यादा एडेड एडवांटेज मिलेगा। और उसमें क्या होगा सर कि फर्दर सर आप जब इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, तो सर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर, कि इन्वेस्टर्स ये पूछते हैं सर कि आपके पास में क्या पेटेंट है, क्या आपके पास में इसका इंडस्ट्रियल डिजाइन जो आपने बनाया है वो आपने क्या रजिस्टर करवा रखा है, आपके पास में इसके राइट्स हैं। तो अगर वो होते हैं तो सर आपको मतलब तेजी से सर ग्रांट मिल जाता है सर, मतलब इन्वेस्टमेंट आसानी से आ जाता है। तो बेहतर होगा सर अगर आप इंडस्ट्रियल डिजाइन की तरफ मुड़े सर। इंडस्ट्रियल डिजाइन के वो पेटेंट ऑफिस से होता है, आईपी ऑफिस से, कि कहीं और नहीं कोई सर, डिपार्टमेंट? नहीं सर, सेम है सर, आप वहां से ले सकते हैं। ओके ओके सर, और थैंक यू सर सर। आईपी इंडिया की जो वेबसाइट है सर, अगर आप आईपी इंडिया की वेबसाइट पे जाते हैं सर, तो वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फाइलिंग की सर्विस अवेलेबल है, तो आप वहां से करवा सकते हैं सर। थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन, कुछ आप जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो?
Anu, you have any question? Ma'am, not yet. If there will be something, I'll get in touch with Kunal. That's because I understood the process. So, like these days, we have the options of e-signing and all. So, I think I'm going the process, and if it's necessary, I'll get in touch with him back. So, Because and Anup is yes, ma'am. one of our other innovator students. He's working on developing something, and he will be going for patenting in the near future. He's very much interested in that. So Ma'am, just looking to the time frame of the earlier patent things, so it was little bit of hesitant for me to file that. But now it seems like that we can do it and without much fee, because it was not possible for me initially to pay this much amount. But now it's okay, ma'am. I'll get in touch if there's anything. Thank you. at least you had so many doubts. Some of them Yes, have been yes, answered, and there might have been clarity about the process. Yes, it is not that difficult. You can also take it up yes, and ma'am. get your product patented when the right time is there. It was a great session, ma'am. Kunal ji, it was a great session. Really like the way how you have given. It seems like you have done a full preparation, and you included about the microbes also, about the other parts, and that was really insightful. Thank you for the information. Thank you. There, Actually, now the things are really things have become really very smooth. Process Mhm. is not that much time consuming. Earlier, it was really time consuming, and it required lots of means expertise, technical expertise. If I get very specific. So, but nowadays things have become really very easy, and with the help of e-sign, if you have one, so you can go for e-filing, and things will you will get the things on time. Even if you can apply for the early publication, so within a matter of 1 month or 2 months, you will get your invention published, and after that you can easily proceed. If a female innovator is included, I think we get that in with a very low fee. Yes, Low, yes, yes, yeah. definitely, definitely. Or if you have a startup, then you will get some added advantage. You will get 80 rebate of around 80%. Okay, Kunal, from where do we get this? Kunalji, from where do we get this rebate? Like, how can we apply for the rebate? So MSME? yes, as a startup you have to apply registered startup. MSME registered startup? Yes, yeah. Um, So if you apply as a registered MSME startup, so you will get 80% rebate in the government fees. So if you get 80% rebate, it means it's a big help. yes, yes, true. So you should go for that if you are a registered startup. Okay, okay, thank I would also like to add in here that Kunal is very helping towards his peers. I've seen him work with other teams in SIH also, and otherwise also other such challenges also. He has been helping and the innovators, IGNO innovators. So if you need any help, you can contact him, and as usual, he will be helping you. I have seen that, so I'm saying this on his behalf because I have Thank you, ma'am. seen him. I have seen him going out of his this thing and helping his peers. Yeah, Kuber, you have a question. हाँ, कुणाल जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो ड्यूरेशन होता है, तो हाँ सभी के जी। लिए 20 इयर्स ही होता है या कुछ ऐसा है कि कम भी है किसी फील्ड के लिए, या फिर ये सेम ही है 20 इयर्स? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज पेटेंट से रिलेटेड है सर, पेटेंट का तो 20 ईयर्स है सर। अच्छा, तो हाँ जब जी सर। उसको फिर कुछ रिन्यू कुछ होता है, या वो फिर उसका होता सर क्या है? नहीं सर, उसकी लाइफ साइकिल 20 ईयर्स की होती है सर। हम्म, आफ्टर दैट वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है,
इसका मतलब है सर जो आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी उस पर 20 इयर्स तक आपका राइट रहेगा सर, डेफिनेटली होना चाहिए सर, आपने इतनी मेहनत की है तो 20 तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन सर अल्टीमेटली सर मैनकाइंड जो है, ह्यूमन रेस जो है सर हमारी, उसको डेवलप करने के लिए सर वो उसका पब्लिक डोमेन में आना बेहद जरूरी है सर, ताकि वो टेक्नोलॉजी दुनिया में दूसरे लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकें। ये सब और फिर वो पब्लिक डोमेन में चला दूसरा जाता है ये सर। था कि इसमें उतना ही टाइम लगता है जितना आपने उसमें स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में 9 इयर्स, तो क्या नहीं अब सर, कुछ टाइम कुछ कम हो गया कि बहुत कम 4-5 हो चुका साल है में? सर, बहुत कम हो चुका है सर। एक्चुअली आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड इंडिया इंडिया इनोवेशन फेस्ट, इट वाज अ काइंड ऑफ इंडिया इनोवेशन फेस्टिवल। और सर तो जब मैं और उसके लिए सर मैं मतलब मुझे सर सीआईआई की तरफ से इनविटेशन आया था सर, तो मैंने वहाँ अटेंड किया था उस प्रोग्राम को। तो सर वहाँ पर उन्होंने उन्होंने बताया कि हमने जो सबसे फास्ट पेटेंट ग्रांट किया है वो विद इन अ ईयर ग्रांट किया है। हम्म तो सर मतलब मुझे ये पता चला सर वहां जाकर के कि 1 साल से भी कम समय में लोग पेटेंट हासिल कर सकते हैं। हम्म तो सर अब प्रोसेस काफी फास्ट हो गया है सर। उन्होंने ये बताया था सर कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, खुद उन्होंने कहा था सर ये आकर के कि हमारे पास मैन पावर की कमी है, लेकिन हमने रिक्रूटमेंट कर ली है, अब हमारे पास में प्रॉपर स्ट्रेंथ है। तो अब जो है वो बैक हम बहुत तेजी से बैकलॉग को क्लियर कर लेंगे और फ्रेश एप्लीकेशंस को भी बहुत तेजी से हैंडल कर पाएंगे। तो सर जहां तक मैं अभी देख रहा हूँ सर कि काम बहुत तेजी से ट्रैक करे सर और अच्छा चल रहा है। ओके, थैंक यू कुणाल जी। वेलकम। इसमें एक चीज मैं यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कि आप में से कभी ऐसा लगे किन्हीं को कि मैं पेटेंट फाइल करने जा रहा हूँ और मुझे जैसे प्रायर आर्ट जो होता है कि मतलब मान लीजिए कि आपने जो इन्वेंशन किया है वो इन्वेंशन क्या उससे उस जैसी कोई चीज या उससे रिलेटेड कोई चीज मतलब पहले किसी ने बना तो नहीं रखी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर वो फीचर भी अवेलेबल है, उसको हम पब्लिक पेटेंट सर्च कहते हैं। तो आप पब्लिक पेटेंट सर्च का इस्तेमाल करके उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो उसका इस्तेमाल करके आप उसको यूज करके आप सर्च कर सकते हैं। काइंडली अलाउ मी अ मिनट। मैं जी मुझे मिल गया, मैं इसको आपको यहाँ चैट में डाल दे रहा हूँ। आप इसका इस्तेमाल करके सर्च कर सकते हैं कि मतलब हम जो चीज बनाने जा रहे हैं वो चीज वहां पर अवेलेबल है या नहीं है, इस पहले किसी ने बना रखी है या नहीं बना रखी। तो और जो पेटेंट लिखने का है, अगर कोई डू इट योरसेल्फ करना चाहते हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, एक ऑर्डर है, पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसमें अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले आपको जब अपना पेटेंट ड्राफ्ट करना आप स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप पेटेंट मतलब आप एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग से स्टार्ट मत कीजिए। आप सबसे पहले अपने जो भी उसके बिट्स एंड बाइट्स इकट्ठे किए हैं, जो भी आपके जो माइनर माइक्रो डिटेल्स थे इन्वेंशन के, सबसे पहले उसको एक जगह जमा कीजिए। उससे रिलेटेड जो आपके क्लेम्स बन रहे हैं कि भाई मैंने जो ये चीज बनाई है इसका ये एप्लीकेशंस होंगे, उन सारे क्लेम्स को पहले इकट्ठा कीजिए। जब आपके पास वो क्लेम्स इकट्ठे हो जाएं और उसके सारे माइक्रो डिटेल्स इकट्ठी हो जाएं, उसके बाद में आप पेटेंट को का एप्लीकेशन ड्राफ्ट कीजिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर मान लीजिए कि आपने सर्च किया और आपको पता चला कि आपने जो बनाया है वो पहले से भी किसी ने बना रखा है, तो प्लीज डिस्करेज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि एक छोटी सी चीज यहाँ पर है, जो वर्ड वहां यूज किया गया नोवेल्टी, उसी के बेसिस पर एक यहाँ पर एक आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है, वो ये मिलता है कि अगर मान लीजिए जो आपका पूरा जो प्रोसेस है, मान लीजिए मैं विनेगर बनाना चाहता था, विनेगर बना रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो तो बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी सी चीज है, लोग बनाते आए हैं आज तक। लेकिन अगर उस पूरे प्रोसेस में कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी अगर नोवेल है, नया है, तो मैं उस थोड़े से हिस्से के लिए भी पेटेंट फाइल कर सकता हूँ। तो इसीलिए अगर आपने कुछ बनाया है, इतनी मेहनत की है, कुछ नया इन्वेंशन है आपके पास में और पहले से वो किसी ने कर रखा है, तो काइंडली डिस्करेज बिल्कुल भी मत होइएगा। आप ये बस ढूंढिए उसमें से कि आप दुनिया ने जो किया है और आपने जो किया है उसमें डिफरेंस क्या है, और अगर वो छोटा सा हिस्सा भी आपके पूरे वर्क में आपको वो अलग नजर आता है, तो प्लीज उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको थोड़ा सा एनहांस कीजिए और उसके लिए पेटेंट फाइल कीजिए, आपको डेफिनेटली पेटेंट मिलेगा। तो ये मैं ऐड करना चाहता था यहाँ। थैंक यू।
जस्ट ए क्वेरी कुणाल जी। सो आप बोल रहे हैं कि जैसे कि टेक्निकलिटीज पे जो भी एप्लीकेशंस बनते हैं उसको माइक्रो क्लेम्स करें हम, राइट? हाँ जी, उसको क्लेम आपको ऐसे ड्राफ्ट करना है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया विनेगर का, तो मान लीजिए कि एप्पल विनेगर तो ऐसे बन रहा है, तो क्या दूसरे विनेगर वैसे नहीं बन पाएंगे? बिल्कुल डेफिनेटली बन पाएंगे, लेकिन चूंकि आपने वो पर्टिकुलर वर्ड मेंशन नहीं किया है, चूंकि वो माइक्रो डिटेल्स आपके क्लेम में नहीं है, इसीलिए दूसरे लोग उस चीज का फायदा उठा करके आपके टेक्नोलॉजी को आसानी से यूज कर पाएंगे और आपका उसके ऊपर कोई क्लेम भी नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और, तो हाँ मतलब जी, हमें जब पेटेंट हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं तो हाँ कुछ जी, कुछ जगह पे ब्रॉडन सेंस हमें यूज करनी चाहिए एंड कुछ कुछ जगह पे डिटेलिंग। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। ब्रॉडन सेंस हमें कब यूज करनी है और डिटेलिंग कब यूज करनी है, ये इस पे थोड़ा सा बताइए। तो ब्रॉडन आपको ज्यादा ब्रॉड सेंस में चलना है जब आप क्लेम पर जा रहे हो, जब आप क्लेम्स लिख रहे हो, अपना क्लेम्स वहां पर दे रहे हो, उसमें आप थोड़ा सा उसको ब्रॉडर वे में रखिए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और जब आप उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को ड्राफ्ट कर रहे हैं, तब आप माइक्रो इंफॉर्मेशन, मतलब एकदम माइन्यूट इंफॉर्मेशन को भी मिस मत कीजिए, और एकदम क्लियर लिखिए। और ऊपर से क्या, जो आप डिजाइन सबमिट करने जा रहे हैं, वो डिजाइन को भी एकदम एकदम क्लियर आपको तैयार करना है। एकदम क्लियर ड्राइंग्स होनी चाहिए, फ्लो चार्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, मतलब इतने क्लियर कि आप ये समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं हूँ, एक कंप्लीटली नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, लेकिन मैं आपके पेटेंट एप्लीकेशन को पढ़ करके हूबहू उसको ऐसा बना पाऊँ जैसा आपने बना रखा है। ओके, तो आपको एक इसमें और एक डिटेलिंग की जो बात आ रही है उसमें ये है, जैसे कि हम लोग वायर्स होते हैं ना, हाँ जंपर जी, वायर्स हाँ जी, आर्डिनो हाँ में जी, जैसे यूज करते हैं, तो हाँ हमें जी। क्या उसकी डिटेलिंग लिखनी है कि वी हैव टू फिट दिस, या फिर उसको जैसे कि फ्लो चार्ट एंड हमारे पास जैसे उसका स्कीमा डायग्राम है, या हाँ फिर जी। तो वो चीज सिर्फ रिप्रेजेंट करने से होता है, या फिर हमें लिखनी है कि वी हैव टू पुट दिस जंपर वायर ऑन दिस सॉकेट, ऐसा कुछ लिखना है क्या? ये देखिए, अगर आप स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो यस, आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको वहाँ लिखना होगा, ओके, आपको लिखना चाहिए वहाँ उसको। आई गेट और मेंशनिंग जंपर, लाइक। हाँ, हाँ, और अगर मान लीजिए कि जंपर वायर किसी खास पर्टिकुलर डायमीटर का है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस पर्टिकुलर डायमीटर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ओके ओके और अगर जनरल है तो आप उसको लिख सकते हैं जनरल है, लेकिन वहां पर फिर एक नई प्रॉब्लम आएगी कि फिर इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसको डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर से प्रॉब्लम होने लग जाएगी, तो फिजिकल एनवायरनमेंट में कैसा बिहेव करेगा। तो आपको उस, मतलब आपको ये सोच के चलना होगा कि मैं अगर एक वर्ड यहाँ लिख रहा हूँ तो इस वर्ड का क्या क्या अर्थ निकल सकता है, और इसको मैंने अपने एप्लीकेशन में किस तरीके से इसको हैंडल कर रहा हूँ। ओके। अब जैसे कि वायर टाइप्स भी होते हैं कभी कभार, तो वो हाँ सब जी, कुछ स्पेसिफाइड रहे हाँ जी, तो वो हाँ बेहतर जी, हाँ है। जी, तो ओके, आपके लिए काफी बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कुणाल। वेलकम, वेलकम। कुणाल, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू सो और मच सर। मुझे लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से आपने एकदम से कि कैसे कैसे स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ क्या क्या स्टेप्स थे, दैट वाज नेसेसरी फॉर ऑल दीज पीपल। क्योंकि थ्योरी तो बहुत सुनते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन जब बिल्कुल कौन सा रास्ता चले हैं और कहाँ कहाँ पे क्या ठोकरें खाई हैं, टक्करें झेली हैं, I think that will help all these those who are interested in a filing for patent. और अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ, चाहे तरुण हो या अनूप हो या जगन्नाथ, डॉक्टर प्रेम राठौर, ये सब लोग तो हैं जो आई थिंक दे आर पोटेंशियल फॉर दिस पर्पस। वैसे सबको करने की ज़रूरत भी है, एंड आई थिंक योर एक्सप्लेनेशन विल हेल्प देम अ लॉट। थैंक यू और सो मच सर। आज के बाद में भी इफ आई थिंक एनीबडी रिक्वायर्स एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, you can write in the group also, because almost all of you are there in the group. यस। तो आप इसमें शेयर करके कहीं भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, एंड वी वुड लाइक टू जस्ट रिक्वेस्ट यू कि काइंडली कम फॉरवर्ड एंड फाइल फॉर पेटेंट इफ़ यू हैव समथिंग फॉर पेटेंट। क्योंकि वो चीज़ें कुछ समय के बाद में आउटडेटेड हो जाती हैं, देन यू फील अरे हमने टाइम से पेटेंट फाइल नहीं किया, इफ़ वी हैड डन देन वी कुड हैव गॉट इट डन। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी,
We will try to help you as much as possible as far as the guidance is concerned, academic support is concerned, and also we will try to help you in some funding also for registration fee. That will depend on the case to case basis. We will look into your case, whether it is a worth patenting, then we'll put it up for our authorities for approval, and then some financial support, maybe partially, maybe full, if we get for registration purpose, that we'll try to manage. So I will request you all to kindly come forward and then file for patent if you have something for that purpose. Okay. So good discussion, good Thank you, sir. presentation. Thank you, Yes. sir. Dr. Prem Kumar, you are there? Yes, sir. Yes, sir. You are in AIMS, I Yes, sir. think. Still you are in AIMS? I joined in AIMS Rishikesh, sir, as an assistant professor. So I left the AIMS Delhi. Sir. Right now you are in AIMS Delhi. Right now, I'm in AIMS Rishikesh, sir. Okay. I would like to inform you all that on this 2nd of July, we will be releasing the book that is Stories of Innovation by IGNOU students. I think innovations by 2, 3, 4. 4 of you who are here right now is figuring in that book. So if you are here in Delhi, then we will invite you for that ceremony. Our Honorable Minister of Education, he will release in the presence of our Vice Chancellor. So you can come and join that function. It He will will be give honored, you, sir. We will come, sir. Yes, I yes. Thank think you, sir. your innovation is included in that. Kunal, your also. Anup, I Yes, sir. think your innovation is also included. And Tarun, your also is, I think, included. So I Sir, can. sir, what is the date of the ceremony, sir? This is 2nd July. On 2nd July, we are having a big program that is a startup fest. Startup fest for IGNOU students and alumni. 7, 8 startup from Delhi NCR. They are exhibiting their startups on this 2nd July. And on the same occasion, we are bringing out this book, Stories of Innovation by IGNOU students. So that will also be released. And I can see 4 of you, your stories are there. So if you can make it possible to come here, I cannot say to the outstation like Kunal, because it will be difficult to come for this purpose only. But sir, it And will be a matter of great pleasure, sir, if if you you are can make the coming by honor. chance, if you are coming by chance to Delhi on that day, then you are most welcome. For sure, Otherwise, sir. Tarun I think is here in Delhi, so Tarun can come, and Prem Kumar is here in Delhi, so he can also come. Anup, Yes, I sir. don't think he will be able to come, but that will be a good opportunity if you join that function. Okay, so it was good session today. Thank you so much, Learning sir. from real experience is always good. Experiential learning, that is an education field we call it. Okay, so thank you very much, Dr. Sujata. We can now wind up if there is no other query or question. Yes. Thank you, Dr. Thank you, team. Sharma. Thank you all for being present here, and thanks to Kunal for Thank you so being much, with ma'am. us today and interacting with other innovator students. Thank you so much. It was a very interesting session, and I think others might have also found it the same way. And if there is anything, I am hopeful that others will contact you and will get the kind of For sure, guidance they ma'am. need from time For to sure, ma'am. time. Thank you so much, Kunal. Thank you once again. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Good day.